اللہ تبارک و تعالی نوجوانوں کو خبردار کر رہا ہے، نوجوانوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ اے نوجوانوں سوچ لو، آج تمہارے اندر جو ہے تمنگئی ہے، آج تمہارے اندر طاقت ہے، آج تمہارے اندر توانائی ہے، تم تو کچھ نہیں سمجھتے ہو، یوں ہی اللہ اور اس کے رسول کی فرامین کو پاؤں تلے روند دیتے ہو۔ یاد رکھو، تم اس بات کو نہ بھولو، تم اس بات کو نہ بھولو کہ ہم نے تمہیں کمزوری سے جوانی کی دہلیز پر لایا ہے۔ تم اس بات کو نہ بھولو کہ جس جوانی کے اندر تم مستانی دکھا رہے ہو، جس جوانی کے اندر تم اپنے سماج کے اندر تکبرانہ رویہ اختیار کر رہے ہو، جس جوانی کے اندر تم تو سماج کے غریبوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہو، جس جوانی کے اندر تم اپنے سماج کے اندر فتنہ برپا کرتے ہو، یاد رکھو یہ جوانی تمہیں اس وقت ملی ہے جب تمہیں ہم نے کمزوری سے لا کر کے جوانی پر کھڑا کیا ہے۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى، اللہ تبارک و تعالی الگ سے جوانی کے تعلق سے سوال کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی کوشش کریں، جوانی کے مرحلے کی کیا ویلیو ہے، جوانی کے مرحلے کی کیا قدر ہے، جوانی کے مرحلے کی کیا قیمت ہے، اسی حدیث سے اندازہ لگائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمر کے بارے میں بھی سوال کر رہا ہے، اور اسی عمر کے اندر جوانی بھی آتی ہے، اسی عمر کے اندر جوانی کا دور بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جوانی کا سوال الگ سے کر رہا ہے۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى، ہم نے جو جوانی تمہیں عطا کی، اس جوانی کو تم نے کہاں فنا کیا، اس جوانی کو تم نے کہاں کھپایا، اس جوانی کو تم نے کہاں پر لگایا۔ نوجوانوں، اس سوال کا جواب ڈھونڈ لو، اے نوجوانوں اس سوال کا جواب ڈھونڈ لو۔ آج تو ہماری جوانی کس چیز میں کٹ رہی ہے، ہمیں اور آپ کو تو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہم تو وہ مسلمان ہیں، ہم تو وہ جوان تھے اپنے دور کے اندر جب مسجد سے اذانیں ہوتی تھی، جب مسجد سے نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، تو ہم تو وہ نوجوان ہیں جو آذان سننے کے بعد بھی ہم غیبت میں اور چغل خوری میں لگے ہوئے رہتے تھے، ہم اپنے موبائلوں کے اندر پب جی اور فری فائر کھیلنے میں لگے ہوئے رہتے تھے، اور نہ جانے کس طرح کے حرام کاریوں میں لگے ہوئے رہتے تھے۔ او نوجوانوں، اس سوال کا جواب بھی ڈھونڈ لینا اپنی زندگی کے اندر، اس سوال کا جواب بھی اپنی زندگی کے اندر ڈھونڈ لینا۔ جوانی کا مرحلہ، اس کی بہت بڑی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی ہے، کیونکہ یہی جوان ہے جو کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی مشن کے لیے، کسی بھی کامیابی کے راستے کے لیے، یہ نوجوان سر فہرست ہونی چاہیے، چاہے وہ مشن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشن کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر نوجوانوں کی کنٹریبیوشن نہیں ہوگی تو اس مشن میں کامیابی حاصل کرنا یہ ناممکن ہے۔ بغیر نوجوانوں کے ایک معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا ناممکن ہے۔ بغیر نوجوانوں کے ہاتھ بٹائے ہم اور آپ اگر کسی بھی سماج کے اندر، اصلاح معاشرہ کے اندر، اگر ہم اسلامی تعلیمات کے اوپر کسی بھی سماج کو اگر سدھارنے کی کوشش کریں گے، تو جب تک اس سدھار کے پیچھے نوجوانوں کی ہاتھ نہیں ہوگی، جب تک اس میں نوجوانوں کا کنٹریبیوشن نہیں ہوگا، تب تک وہ سماج جو ہے اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا ہے، جب تک کہ نوجوان کندھے سے کندھے ملا کر کے چلنا نہ شروع کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر نوجوانوں کے تعلق سے بہت بڑی اہمیت کو واضح کیا ہے، اور یہی ریزن ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوانی کی قدر کی تاکید کی ہے کہ نوجوانوں تمہیں جو جوانی ملی ہے، نوجوانوں تمہیں جو یہ دبنگئی والی جو صحت ملی ہے، تمہیں جو یہ توانائی والی صحت ملی ہے، اس کو یوں ہی برباد نہ کیا کرو، اس کو یوں ہی بیزا طریقے سے ختم نہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جن میں سے 2 چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ عمر ہے،
اے نوجوانوں، تمہیں جو حیات اس دنیا کے اندر ملی ہے اس کو غنیمت سمجھو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اے نوجوانوں، تم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اپنی زندگی کو جو ہے بطور امانت سمجھو یہاں تک کہ تمہارے جسم کے اندر موت طاری ہو جائے، یہاں تک کہ تمہارا جسم جو ہے وہ مردہ ہو جائے۔ حیاتک قبل موتک، تم اپنے حیات کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور شبابک قبل حرمک، تم اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، تم اپنی جوانی کے اوپر خیر مناؤ یہاں تک کہ تمہارے جسم کے اندر بڑھاپا آ جائے۔ تم اپنی جوانی کو اس وقت تک غنیمت سمجھو، اس وقت تک اپنی جوانی کے اوپر خیر مناؤ کہ جب تک کہ تمہارے جسم کے اندر بڑھاپا نہ آ جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان چیزوں کو یعنی جوانی کو اپنے لیے غنیمت سمجھو، اور غنیمت سمجھنے کا مطلب یہ ہے، غنیمت گرداننے کا مطلب یہ ہے کہ اے نوجوانوں، اپنی جوانی کو جوا کے اڈے پر نہ گزارا کرو، اپنی جوانی کو شراب کے اڈے پر نہ کھپایا کرو، اپنی جوانی کو بے نمازی میں نہ گزارا کرو، اپنی جوانی کو بدکاریوں میں نہ گزارا کرو، اپنی جوانی کو بدفعلیوں میں نہ گزارا کرو، اپنی جوانی کو گناہ کے کاموں میں نہ گزارا کرو۔ تم اپنی جوانی کو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دو، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے متعین کر دو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جوانی تمہیں عطا کی ہے، کیونکہ اسی جوانی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک انسان کے اوپر جب میدان محشر برپا ہوگی، جب اللہ تبارک و تعالی عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، جب اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے کے لیے بیٹھے گا، جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے نام اعمال کو لے کر کے بیٹھے گا، اس وقت ایک انسان کے سر کے اوپر 1 میل کے فاصلے پر یہ سورج ہوگی، اور اس کی تپش کا اندازہ لگائے، اس کی گرمی کا اندازہ لگائے۔ آج اتنے اوپر ہونے کے باوجود سورج اتنا اوپر ہے ہم سے، اس کے اندر ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ گرمی کا یہ اندازہ ہے، اور گرمی کی یہ حالت ہے کہ ایک انسان 1 سیکنڈ کے لیے بغیر فین کا نہیں رہ سکتا ہے، ایک انسان 1 سیکنڈ کے لیے بغیر کولر کا نہیں رہ سکتا ہے، ایک انسان 1 سیکنڈ کے لیے بغیر اے سی کا نہیں رہ سکتا ہے۔ تو تصور کرو کہ اس دن ایک انسان کے سر کے اوپر 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگی، اس وقت تپش کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور کوئی چھاؤ نہیں ہوگا، اور کوئی جو ہے تپش سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کی۔ عرش الہی کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا جہاں پر ایک انسان چھائے کو حاصل کر سکے، جہاں پر ایک انسان جو ہے گرمی سے بچ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن انہی عرش کے سائے کے نیچے اس نوجوان کو جگہ دے گا جس نوجوان نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، جس کی جوانی اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اسی جوان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس کی جوانی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر گزری ہو، جس کی جوانی جو ہے اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق گزری ہو۔ تو یہ جوانی کی قدر و قیمت ہے۔ جوانی کا وقت ایک انسان کے لیے بڑی ہی طاقت اور توانائی کا دور ہوتا ہے۔ جوانی کے اندر ایک انسان جو ٹھان لیتا ہے بڑی آسانی سے کر لیتا ہے۔ اگر ایک انسان جوانی کے اندر یہ ٹھان لے کہ ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو وہ انسان بڑی آسانی سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ جوانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے جسم کے اندر وہ طاقت رکھی ہے، وہ قوت رکھی ہے، وہ توانائی رکھی ہے، اور یہ ایسا مرحلہ ہے کہ ایک انسان اسی جوانی کے اندر اگر جو چیز چاہے بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی کیا ہے کہ انسانی زندگی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔
इंसानी जिंदगी के इस दुनिया के अंदर 3 मरहले होते हैं, जिनमें सबसे पहला मरहला जो है वो बचपन का मरहला है, और दूसरा मरहला जो है वो जवानी का मरहला है, और तीसरा मरहला जो है वो अधेड़ का मरहला है, वो बुढ़ापे का मरहला है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि हमने एक इंसान को इस दुनिया के अंदर जब पैदा किया तो उसको कमजोरी की हालत में पैदा किया। तसव्वुर करो, जब एक इंसान अपने माँ के रहमे मादर से जो है जन्म लेता है, जब एक इंसान इस दुनिया के अंदर अपने माँ के पेट से बाहर आता है, उस वक्त एक इंसान बड़ा ही कमजोर होता है, उस वक्त एक इंसान बड़ा ही लागर होता है, उस वक्त एक इंसान जो है उसके अंदर ताकत नहीं होती है, उसकी पूरी जो है बचपना जो है दूसरों के सहारे ही कटती है। अगर एक माँ अपने बच्चे को खाना नहीं देता है तो वो बच्चा खाना नहीं खा सकता। एक माँ अगर अपने बच्चे को दूध नहीं देती है तो वो बच्चा दूध भी नहीं पी सकता है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वा। हमने जब एक इंसान को पैदा किया, हमने जब एक इंसान को इस दुनिया के अंदर पैदा किया तो वो बड़ा ही कमजोर था, उसके अंदर जो है ताकत नहीं थी, उसके अंदर कुव्वत नहीं थी, उसके अंदर जो है तवानाई नहीं थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा, फिर हमने उसको कमजोरी के बाद जो है हमने जवानी अता कर दी, फिर हमने उसको कमजोरी के बाद जवानी का मरहला भी अता कर दिया, हमने उसको बचपन की जिंदगी गुजारने के बाद हमने उसके जवानी का दौर भी अता कर दिया। जो जवानी का दौर बड़ा ही ताकत दौर था, बड़ा ही तवानाई वाला दौर है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा, फिर अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि जब एक इंसान बचपने की जिंदगी को गुजारने के बाद जब जवानी की दहलीज पर कदम रख देता है, जब जवानी के ऊपर एक इंसान कदम रख देता है, तो यही दौर है जो एक इंसान की जिंदगी के लिए ताकत और कुव्वत वाला दौर है। फिर हम उसके जवानी के बाद उसके अधेड़ के दौर जो है वो गुजर जाने के बाद हमने फिर से उस इंसान को कमजोरी में ला दिया। जब एक इंसान 50 साल की उम्र का हो जाता है, जब एक इंसान 55 साल की उम्र का हो जाता है, उस दौर में भी एक इंसान जो है कमजोर हो जाता है। बचपने में तो एक इंसान कमजोर था, लेकिन उसे खाना खिलाने के लिए उसकी माँ मौजूद थी। बचपने में एक इंसान कमजोर था, लेकिन उसे खाना देने के लिए उसका बाप मौजूद था। लेकिन ये बुढ़ापा एक ऐसा दौर है, अधेड़ की उम्र की गुजार देने के बाद जब एक इंसान की जिंदगी के अंदर बुढ़ापा आता है, जब बुढ़ापे की दहलीज पर एक इंसान कदम रख देता है, तो यहाँ पर एक इंसान इतना कमजोर हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि उसे खाना देने के लिए कोई इंसान नहीं होता है। खाना उसके सामने मौजूद है लेकिन कोई खिलाने वाला नहीं है, उसके पास पानी मौजूद है लेकिन नहाने की ताकत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला नौजवानों को खबरदार कर रहा है, नौजवानों को आगाह कर रहा है कि ऐ नौजवानों सोच लो, आज तुम्हारे अंदर जो है तवंगई है, आज तुम्हारे अंदर ताकत है, आज तुम्हारे अंदर तवानाई है, तुम तो कुछ नहीं समझते हो, यूं ही अल्लाह और उसके रसूल की फरामीन को पांव तले रोंद देते हो। याद रखो, तुम इस बात को ना भूलो, तुम इस बात को ना भूलो कि हमने तुम्हें कमजोरी से जवानी की दहलीज पर लाया है। तुम इस बात को ना बोलो कि जिस जवानी के अंदर तुम मस्तानी दिखा रहे हो, जिस जवानी के अंदर तुम अपने समाज के अंदर तकब्बुराना रवैया इख्तियार कर रहे हो, जिस जवानी के अंदर तुम तो समाज के गरीबों को कुछ नहीं समझते हो, जिस जवानी के अंदर तुम अपने समाज के अंदर फितना बर्पा करते हो, याद रखो ये जवानी तुम्हें उस वक्त मिली है जब तुम्हें हमने कमजोरी से लाकर के जवानी पर खड़ा किया है। ओ जवानों, याद रखो इस जवानी के बाद भी हम तुम्हें कमजोरी पर लाकर के खड़ा करेंगे। इस जवानी के बाद भी हम तुम्हें एक ऐसा दौर भी दिखाएंगे जिस वक्त तुम चाहोगे कोई मदद करने वाला आ जाए, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं होगा, कोई खाना देने वाला नहीं होगा, कोई एक निवाला खिलाने वाला नहीं होगा। उस वक्त तुम्हें एहसास होगी कि हम तो वही जवान है, हम तो वही दबंगई वाला जवान है जिसने अपनी जवानी के अंदर मस्तानी किया करता था। हम तो वही जवान है जिस जवानी की हालत में हमने तो गरीबों को कुछ नहीं समझा था। हम तो वही जवान
जवान है जिस जवानी के अंदर हमने मस्जिद के दरवाजे के अंदर अपनी कदम को भी नहीं रखा था। मेरे अजीज साथियों, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के जरिए नौजवानों को मैसेज दे रहा है, सोए हुए नौजवानों को जगाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा। ए नौजवानों, हमने कमजोरी के बाद तुम्हें जवानी अता कर दी और जवानी के बाद हम तुम्हें जो है कमजोरी के ऊपर ला करके फिर खड़ा करेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला का फैसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी आयत करीमा की ज़िम्न में एक हदीस को जिक्र करते हैं। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसअलु अन खम्सिन व अर्बअ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान के हिसाब के लिए बैठेगा। जब एक इंसान का हिसाब का दौर आएगा अल्लाह तबारक व तआला के सामने, जब तक एक इंसान 5 या 4 सवालों का जवाब नहीं दे देगा तब तक एक इंसान अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकता है। जब तक एक नौजवान जो है अपनी जवानी के ताल्लुक से जो सवाल किया जाएगा उसका जवाब जब तक नहीं दे देगा वो इंसान अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकता है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके उम्र के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा, वान उम्रिही फीमा अफना। ऐ इंसान बता, मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर जिंदगी अता की थी, मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर जिंदगी दिया था, मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर हयात बख्शा था, बता तूने उस जिंदगी को कहाँ फना किया, तुमने अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा। जब तक एक इंसान इस सवाल का जवाब नहीं दे देगा वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। मेरे अजीज साथियों, जब अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी का सवाल करेगा कि अन उम्रिही फीमा अफना, हमने जो उम्र तुम्हें दिया उस उम्र को तूने कहां फना किया। जब अल्लाह तबारक व तआला उम्र के लफ्ज को इस्तेमाल कर देगा उस वक्त एक इंसान को सोच लेना चाहिए कि जवानी भी शामिल है, बचपन का दौर भी शामिल है, अधेड़ का दौर भी शामिल है, बुढ़ापे का दौर भी शामिल है। इसके अंदर 4 चीजें शामिल है। जब तक एक इंसान इन 4 चीजों का सवाल का जवाब नहीं दे देगा, उम्र के ताल्लुक से सवाल होगा, बचपने का भी जवाब देना होगा, जवानी के दौर का भी जवाब देना होगा, अधेड़ के दौर का भी जवाब देना होगा और बुढ़ापे के उम्र का भी जवाब देना होगा। उसके बाद फिर दूसरा सवाल आएगा, वन शबाबिही फीमा अबला। अल्लाह तबारक व तआला अलग से जवानी के ताल्लुक से सवाल करेगा। मेरे अजीज साथियों, जवानी की कदर और कीमत को समझने की कोशिश करें। जवानी के मरहले की क्या वैल्यू है, जवानी के मरहले की क्या कदर है, जवानी के मरहले की क्या कीमत है, इसी हदीस से अंदाजा लगाए। अल्लाह तबारक व तआला उम्र के बारे में भी सवाल कर रहा है और उसी उम्र के अंदर जवानी भी आती है, उसी उम्र के अंदर जवानी का दौर भी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जवानी का सवाल अलग से कर रहा है, वअन शबाबिही फीमा अबला। हमने जो जवानी तुम्हें अता की उस जवानी को तुमने कहां फना किया, उस जवानी को तुमने कहां खपाया, उस जवानी को तुमने कहां पर लगाया। नौजवानों, इस सवाल का जवाब ढूंढ लो। ऐ नौजवानों, इस सवाल का जवाब ढूंढ लो। आज तो हमारी जवानी किस चीज में कट रही है, हमें और आपको तो अच्छी तरीके से मालूम है हमारी जवानी किस चीज में कट रही है, हमें और आपको इसका अंदाजा तो है। मेरे अजीज साथियों, इस सवाल का जवाब भी ढूंढ लें। अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब तक एक इंसान अपनी जवानी के ताल्लुक से जो सवाल होगा उसका जवाब नहीं दे देगा, एक इंसान अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकता है। मेरे अजीज साथियों, आज तो बड़ी आसानी के साथ हम कुरान और हदीस के उसूलों को पसे पुस्त डाल दिया करते हैं। मस्जिद से अजानें होती है, हम तो मस्जिद के बगल में 100 की स्पीड में अपने गाड़ी को भगाते हैं। मेरे अजीज साथियों, याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला के सामने इस दबंगई का भी जवाब देना होगा कि हम तो वो मुसलमान हैं, हम तो वो जवान थे अपने दौर के अंदर जब मस्जिद से अजानें होती थी, जब मस्जिद से नमाज के लिए बुलाया जाता था तो हम तो वो नौजवान हैं जो आजान सुनने के बाद भी हम गीबत
में और चुगलखोरी में लगे हुए रहते थे, हम अपने मोबाइलों के अंदर पबजी और फ्री फायर खेलने में लगे हुए रहते थे और न जाने किस तरह के हराम कार्यों में लगे हुए रहते थे। ओ नौजवानों, इस सवाल का जवाब भी ढूंढ लेना अपनी जिंदगी के अंदर, इस सवाल का जवाब भी अपनी जिंदगी के अंदर ढूंढ लेना, क्योंकि बगैर जवाब दिए एक इंसान अपनी जिंदगी को और अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को उसी वक्त रोक देगा जब तक एक इंसान अपनी जवानी के ताल्लुक से जवाब नहीं दे देगा। अपनी जवानी के ताल्लुक से जो सवाल होगा उसका इंतजाम कर ले, उस सवाल का जवाब ढूंढ ले कि हमने अपनी जवानी के अंदर क्या किया है उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए। और जवानी के ताल्लुक से सवाल करने की एक रीजन ये भी है कि इस दीन इस्लाम को अगर सरबुलंद बनाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का रहा है तो वो नौजवानों का रहा है। वो सहाबाए किराम का दौर आप उठा करके देख ले, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजमीन अरब के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद की, उस वक्त नौजवानों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। आज जो है हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर आलिम तो है, उलमा तो है, इमाम तो है, लेकिन उसके कदम से कदम मिला के चलने के लिए नौजवान नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद की सरजमीन अरब के अंदर, उस वक्त अगर हजरत बिलाल ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया तो बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र जो है वो 22 से 23 साल की उम्र थी। अगर हजरत उमर ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया और उस दौर में किया जब दार अरकम में छुप करके नमाजें पढ़ा करते थे, जब दार अरकम में छुप करके दीन की तदरीस और दीन का दर्स दिया करते थे, ऐसे दौर में जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम को कबूल किया तो दीन इस्लाम को इतनी कुव्वत मिली, इतनी कुव्वत मिली कि दार अरकम से निकलने के बाद डंके के चोट पर उन्हीं जवानों ने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद की सरजमीन अरब के अंदर। और किसी भी काफिर के अंदर, किसी भी मुशरिक के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने अपने जवान को जुम्बिश दे सके। ये जवानी की ताकत है, ये जवानी की कुव्वत है, ये जवानी की तवानाई है कि एक इंसान ने जो छुप करके दीन इस्लाम की तबलीग किया करते थे, जो दारे अरकम में छुप करके इस दीन को फैलाने की कोशिश करते थे, एक नौजवान ने इस्लाम को कबूल किया, एक जवान ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, फौरन दारे अरकम से निकल गए और उसी सरजमीन अरब की गलियों में सदाएं बुलंद करते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते हुए निकलते हैं और जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने का दावा करते हैं। आज हमारे मुआशरे के अंदर भी इस चीज की कमी है, हमारे समाज के अंदर भी इस चीज की कमी है और हमारे मुल्क के अंदर भी इस चीज की कमी है। हमारे नौजवान जो है वो 5G नेट का फायदा उठाने में लगे हुए हैं, हमारे मुआशरे के जवान जो है वो पबजी और फ्री फायर में लगे हुए हैं। यही गैर मुस्लिमों को देख ले, अंधभक्त जिसको कहा जाता है, वो अपने जो है बाबाओं को और अपने सरबराहों की जो है पैरवी करने में लगे हुए हैं। अगर उसके बाबाओं के खिलाफ एक वर्ड अगर कोई बोल देता है सोशल मीडिया के अंदर तो पूरे के पूरे अंधभक्त उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और जिसका नतीजा है कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी उसे मिली है और आज मुसलमानों के ऊपर हुकूमत कर रहा है। आज यही वजह है कि एक मुसलमान के साथ जब चाहता है मॉब लिंचिंग कर देता है, एक मुसलमान को जिस वक्त चाहता है मौत का घाट उतार देता है, एक मुसलमान को जिस वक्त चाहता है चौक चौराहे पर कत्ल कर देता है। यही रीजन है कि हमारे मुसलमान जो है वो बिगड़े हुए हैं और हमारे नौजवान जो है वो पटरी से नीचे उतरे हुए हैं। यही रीजन है कि हमारे समाज के अंदर ना तो इस्लामी तालीमात पर काम हो रही है, यही रीजन है ना तो हमारे मकतब मजबूत हो रहे हैं, यही रीजन है कि ना तो हमारे मस्जिद मजबूत हो रही है, यही रीजन है ना तो हमारी मिशनें कामयाब हो रही है, यही रीजन है कि ना तो हम किसी चीज में कामयाबी हासिल कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा नौजवान बिगड़ा हुआ है, हमारा नौजवान बिगड़ा हुआ है। यही रीजन है मेरे अजीज साथियों, जब सहाबाए किराम की जिंदगियों का मुताला करते हैं, जब कुरानी नौजवानों का मुताला करते हैं तो मेरे अजीज साथियों जिस्म के अंदर वो ताकत, वो
वो कुव्वत आ जाती है कि इसी वक्त जो है दीन की तबलीग के लिए कोई कदम उठाया जाए। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो, गौर व फिक्र करो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेला तनहा वो नबी है जिसने माबूदाने बातिल को अपने हाथों से तोड़ा था। ये अकेला वो नबी है जो अपने देवी देवताओं को पूजा करने के बाद, उसकी परस्तिश करने के बाद जब मेले के शक्ल इख्तियार करने के लिए किसी दूसरे मकाम की तरफ गए, उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन बुतों को अपने हाथों से तोड़ करके दिखाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तज़किरा कुरान मजीद के अंदर भी किया है। क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहिम, कि उन्होंने देखा कि उनके माबूदाने बातिला को और उनकी देवी और उनके देवताओं को जो है तोड़ फोड़ करके रख दिया गया है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको तोड़ने के बाद सिर्फ एक बुत को छोड़ दिया जो बड़ा बुत था, और उसके कंधे पर कुल्हाड़ी को लटका करके छोड़ दिया। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो वो कौन सी ताकत थी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जवानी के अंदर ये कारनामा करके दिखाया कि इस दुनिया के अंदर अगर इबादत होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की होगी। हमारे कौम के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो किसी देवी और देवताओं के सामने अपने सर को झुकाएगा, गैरुल्लाह के सामने अपने सर को झुकाएगा। और उन्होंने ये सोच करके उन माबूदाने बातिलों को जो है तोड़ फोड़ करके रख दिया। जब वो कौम वाले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम वाले जब मेले से वापस आए, उस वक्त देखा कि उनकी बुतों को तो तोड़ दिया गया है, उनके बुतों को जो है तोड़ फोड़ करके रख दिया गया है। तो लोगों ने कहा कि क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहिम, इसका तोड़ने वाला एक ही शख्स हो सकता है जो हमारे बुतों के बारे में उल्टी सीधी बातें किया करते हैं, और वो इंसान हजरत इब्राहिम है। इब्राहिम के अलावा और कोई भी इंसान इस काम को अंजाम नहीं दे सकता है। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो ये वही जुर्म था जिस जुर्म के बाद आग की भट्टी पर जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फेंका गया। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो कि जवानी का हालत जो होता है, जवानी का मरहला जो होता है, कितना और तवानाई वाला मरहला होता है कि समाज का इंसान एक तरफ है, मुआशरे के पूरे इंसान एक तरफ है, लेकिन एक अकेला इंसान उन सारी की सारी बुतों को तोड़ देता है। मेरे अजीज साथियों, ये जवानी की पावर है, ये नौजवानी की ताकत है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगियों का मुताला करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरानी नौजवान का तज़किरा कुरान मजीद के अंदर भी किया है। या साहिबई सिज्न अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। सूरह यूसुफ को उठा करके देखें, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अजीज मिस्र की बीवी की नाफरमानी करने पर उसे जेल के अंदर डाला गया, जेल के सलाखों के पीछे डाला गया। या साहिबई सिज्न, अरबी के अंदर सिज्न के माने जेल खाना होता है। जब उसे जेल के अंदर डाला गया, वहां पर भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा या साहिबई सिज्न अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, कि वही अकेला और तन्हा रब है, वही वाहिदुल क़हार है, उसके अलावा और कोई इंसान नहीं है इस दुनिया के अंदर जिसकी परस्तिश की जाए। ये जवानी की ताकत है, ये जवानी की पावर है कि एक इंसान जेल खाने के अंदर बंद है, एक इंसान जो है जेल खाने के अंदर कैद है, और जेल खाने के अंदर कैद होने के बावजूद भी उसके अंदर इतनी पावर है, उसके जवानी के अंदर इतनी ताकत है कि उन्होंने जेल खाने के दारोगा से कहा और जेल खाने के अंदर जितने भी मुशरिक थे उन लोगों से कहा कि वाहिदुल क़हार तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही है। ये जवानी की पावर है। हमने और आपने अपनी जवानी की पावर को आज तक समझा ही नहीं है, हमने अपने जवानी की ताकत को समझा ही नहीं है कि इस जवानी के अंदर अगर एक इंसान ठान ले तो क्या नहीं हो सकता है। इस जवानी के अंदर एक इंसान समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर इनकलाब बर्पा कर सकता है। अगर ठान ले तो इस समाज की जो है हालत और हुलिये को बदल सकता है, समाज की हालत और हुलिये को बदल सकता है। अगर नौजवान सुधर जाए, अगर नौजवान जो है पटरी के ऊपर आ जाए, समाज को सुधार सकता है बड़ी आसानी के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी रसूल, दो सहाबी रसूल है जिसका नाम मुआज और मुअव्वज है, जिसका नाम मुआज और मुअव्वज है। जंग बदर का मौका है, ये दोनों भाई अपने घर से निकलते हैं, ये दोनों भाई अपने घर से निकलते हैं और जंग बदर में शरीक हो जाते हैं। करते हैं कि चचा जान अबू जहल कहाँ है,
चचा जान अबू जहल कहाँ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना बता दो कि अबू जहल कहाँ है। मेरे अजीज साथियों, वो सहाबी रसूल सवाल करते हैं, पूछते हैं कि ए मेरे बेटे, तुझे अबू जहल से क्या काम, तुम्हारी उम्र तो अभी बहुत छोटी है, तुम इस जंग के अंदर क्यों आए, जिहाद के अंदर शरीक क्यों हुए, तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है, और तुम अबू जहल के बारे में क्यों पूछ रहे हो, अबू जहल के बारे में क्यों सवाल कर रहे हो। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाए कि एक इंसान के अंदर ईमान कितना मजबूत होता है, और एक इंसान जब जवानी के दहलीज पर होता है तो उसके खून के अंदर कितनी पावर होती है कि वो इंसान, वो सहाबी रसूल, वो मुआज और मुअव्वज उसके सवाल का जवाब देते हैं कि ए मेरे चचा जान, मैंने सुना है कि वो अबू जहल मेरे नबी को गालियां दिया करते हैं, मैंने सुना है कि वो अबू जहल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा करते हैं, मुझे सिर्फ दिखा दो कि अबू जहल कहाँ है। वो सहाबी रसूल इशारा करते हैं कि वो देखो घोड़े के ऊपर सवार है, वो अबू जहल है। वो दोनों भाई लपकते हैं और उस अबू जहल के गर्दन के ऊपर तलवार चलाते हैं और उस अबू जहल को जंग बदर के अंदर कत्ल कर देते हैं, जंग बदर के अंदर मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो, एक इंसान जो है नाबालिग है, उसके अंदर ईमान की ताकत देखो, नबी से मोहब्बत की ताकत देखो, जवानी की जो तवानाई है उसका अंदाजा लगाओ कि वो दोनों बच्चे दौड़ करके जाते हैं और उस अबू जहल के गर्दन के ऊपर तलवार चलाते हैं, उसके जो है गर्दन के ऊपर तलवार चलाते हैं। अबू जहल वहीं तड़प करके रह जाता है और मौत का घाट उतार दिया जाता है। ये जवानी की ताकत है, ये जवानी की पावर है। मेरे नौजवानों, आज अपने जवानी के ऊपर गौर फिक्र कर लो, आज अपनी जवानी के ऊपर जो है और अपनी जवानी के का अंदाजा लगा लो कि हमारी जवानी कहाँ गुजर रही है, हमारा शबाब जो है वो कहाँ गुजर रहा है, हम किन चीजों में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। आज तक तो हमने बहुत से गुनाह के कामों को अंजाम दे लिया है। खुदारा अल्लाह तबारक व तआला को इसी घर के अंदर अपना रब मानो और अपने गरीबान के अंदर, अपने दिल के अंदर ये फैसला कर लो कि आज के बाद हम अल्लाह और उसके रसूल के उसूलों के खिलाफ अपनी जिंदगी को नहीं